Hello students, very good evening to all of you. My name is Tamanna. Welcome to TED Buzzer. सो स्टार्ट करन जा रहे हैं जी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास डे 7 जो है ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਾਂ 6 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਫਸਟ ਡੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ कीवर्ड फाइंड आउट करके डायरैक्ट क्वेश्चंस रीड करके पैराग्राफ तो आंसर लभने हैं या फिर एक क्विक रीडिंग लैके फिर क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व करना है। वो ਤੁਹਾਡੀ खुद ਦੀ चॉइस होएगी। जो भी मैथड ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी लगता है उस मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊ ਹੈ, ठीक है। और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਡੇ 7 ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। We must insist that free oratory is only the beginning of free speech. It is not the end but a means to an end. ठीक है, just wait a minute. हाँ जी ਹੁਣ ठीक है। सो इंसिस्ट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ स्वीकारना किसी चीज़ ਨੂੰ या इंसिस्ट करना। वी मस्ट इंसिस्ट दैट फ्री ऑरिटरी, ऑरिटरी का मतलब होंगे जी भाषण, ठीक है कि भाषण इज ओनली द बिगनिंग ऑफ फ्री स्पीच की जी स्वतंत्र भाषण है ऑरिटरी वो फ्री स्पीच की शुरुआत है। इट इज़ नॉट द एंड, एंड नहीं है बट ए मीनस टू एन एंड, लेकिन इसका मतलब एक एंड तक ही है। द एंड इज़ टू फाइंड द ट्रुथ, किस चीज़ का एंड है जी, की चीज़ लभनी है, ट्रुथ नू। द प्रैक्टिकल justification of civil liberty is not that the examination of opinion is one of the necessities of man, ठीक है कि एग्जामिनेशन ओपीनियन विचारा का एग्जामिनेशन करना ही की है जी मैन दी की हो चुकी है, necessity हो चुकी है। फॉर एक्सपीरियंस टेल अस, एक्सपीरियंस दसदा है इट इज़ ओनली व्हेन freedom of opinion becomes the compulsion to debate that the seed which our forefathers planted has produced its fruit। वो कहते हैं when freedom of opinion becomes the compulsion, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰੀडम ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ, ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ दैट इज़ अंडरस्टैंड, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ फ्रीडम विल बी चेरिश्ड, फ्रीडम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। not because it is went for our opinions but because it is the surest method of correcting them, क्योंकि ये चीज़ की है जी ये बिल्कुल श्योरेस्ट, बिल्कुल श्योर पक्का मैथड है जी इस चीज़ ਨੂੰ करैक्ट करने वास्ते। मतलब जो आप डिबेट के थ्रू ये चीज़ जान लवांगे कि जो चीज़ अपने पूर्वजा ने आपां नूं दित्ती या प्रोड्यूस की, जिहड़ा बीज अपने पूर्वजा ने अपने लिए बोया तो वो अज आपां नूं फ्रूट दे रहा है, चंगा फल दे रहा है या नहीं। द अनएग्जामिन्ड फाइव सेड सुकरात इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन, दिस इज द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है कि अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन एक ही है जी ये लिबर्टी का गुण है। एंड द ग्राउंड ऑन विच वी मे बेस्ट जस्टिफाई आर बिलीफ इन इट, कि जिस ग्राउंड ते आपां हाँ विच वी मे बेस्ट जस्टिफाई आर बिलीफ इन इट ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। दैट इज टॉलरेट्स एरर, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਟਰੁੱਥ, ट्रुथ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਰਰ, त्रुटियां कमियां टॉलरेट करते हैं। when more men are brought face to face with their opponents or forced to listen and learn and mend their ideas, they cease to be children and savage and begins to live like civilized men। सीज ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੋਕਣਾ,
ਟੂ ਬੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਸੈਵੇਜ, ਸੈਵੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। then only is freedom a reality, जब उदों ही freedom स्वतंत्रता reality बन सकती है when men may voice their opinion, ਜਦੋਂ men ਆਪਦੀ voice ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। because they must examine their opinion, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ opinion ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। the only reason for dwelling on all this is that we are to preserve democracy, we must understand its principle। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ we are to preserve democracy, मतलब अगर ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we must understand its principle, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। and the principle which distinguish it from, distinguish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ, it from all other form of government is that in a democracy, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਟ ਫਰੋਮ ਆਲ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਟੋਲਰੇਟਿਡ ਐਜ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ but must be maintained because it is in fact indispensable। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਟੋਲਰੇਟਿਡ, ਟੋਲਰੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਨਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ, क्योंकि ये चीज़ की है जी इनडिस्पेंसेबल है, इट मीन्स ये चीज़ की है जी, ये चीज़ लाजमी है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब लाजमी। द डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट इफेक्टिव ओपोजिशन। तो कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इफेक्टिव ओपोजिशन की बजाय नहीं चल सकता, ठीक है। सो ये अंदर आपको डेमोक्रेसी बारे दसिया गया है कि किस तरीके दे नाल आपां नूं अपने ओपीनियन सामने रखने चाहिए है, ठीक है। विचारां दी स्वतंत्रता बारे इस दे अंदर गल की गई है। सो एक क्विक रीडिंग लै ली तो आपां नूं ऑलमोस्ट इसका अंदाजा लग गया। ज़्यादा डीप च नहीं जाना चीज़ों को लैके, हर चीज़ का मीनिंग नहीं समझना, ठीक है। कोशिश ये नहीं करनी सानू सारे पैराग्राफ च जिन्ने भी मीनिंग दिते गए, वर्ड दिते गए, सारिਆਂ ਦਾ मीनिंग पता लग जाए। पैराग्राफ में पढ़िया आपां नूं पता लग गया डेमोक्रेसी के बारे दसिया गया है। पहला च आपां पढ़िया कि ये अंदर विचारां की स्वतंत्रता बारे दसिया गया है। ये बारे दसिया गया कि आपां नूं डेमोक्रेसी के प्रिंसीपल्स नूं समझना पएगा। उन्हां प्रिंसीपल जिहड़ा प्रिंसीपल सब तो अलग है, ठीक है, उनके बारे जानना होएगा। ओपोजिशन सिर्फ और सिर्फ उसनूं टॉलरेट नहीं कर रही, बल्कि वो संविधानिक रूप नाल अपने लिए लाजमी हो चुका है। सो ये सारा आपां इहदे अंदर पढ़ चुके हैं। तो चलो हुण आपां करदे हां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेमोक्रेसी कैन बी प्रिजर्व। पैसेज के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो किस तरीके दे नाल प्रिजर्व का मतलब होंदा है बचा के रखना, उन्होंने रखा जा सकता है, बचा के रखा जा सकता है। बाय मेकिंग गुड लीडर्स, अच्छे लीडर्स के नाल आपां उन्होंने बचा सकते हैं। बाय चेंजिंग प्रिंसीपल सिद्धांतां दे चेंज करके। बाय हैविंग गुड परसनैलिटी, अच्छी परसनैलिटी के नाल आपां उन्होंने प्रिजर्व करके रख सकते हैं। या फिर विद द हैल्प ऑफ गुड टीचर, अच्छे अध्यापकों की मदद के नाल आपां की कर सकते हैं, डेमोक्रेसी नूं बचा सकते हैं। एक बारी आपां चलते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो उत्थे आपां प्रिजर्वड वर्ड जो है वो देखिया सी
कि ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है कि डेमोक्रेसी ਨੂੰ प्रिजर्व करके वी आर टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स प्रिंसिपल कि अगर ਆਪਾਂ डेमोक्रेसी ਨੂੰ प्रिजर्व करके रखना है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ प्रिंसिपल ਨੂੰ समझना पवेगा। ठीक है the only reason for dwelling on all this is that we are to preserve democracy कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ डेमोक्रेसी ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। we must understand its principle ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ प्रिंसिपल ਨੂੰ समझना पएगा। तो उन्हें इत्थे की लिखे बाय चेंजिंग प्रिंसिपल्स नू चेंज नहीं करना आपा प्रिंसिपल्स नू समझना है। तो कह रहे कि अगर अपनी अच्छी पर्सनैलिटी होएगी तो ही आप की कर सकते हैं डेमोक्रेसी नू प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय हैविंग ए गुड पर्सनैलिटी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वर्च्यू ऑफ लिबर्टी मीन्स वर्च्यू ऑफ लिबर्टी का की मतलब है। ठीक है हैविंग ए गुड पर्सनैलिटी अच्छी पर्सनैलिटी होना डूइंग डिबेट किसी दे नाल डिबेट करना टॉलरेटिंग एरर्स टू बी सर्व ट्रुथ एरर्स नू टॉलरेट करना। ठीक है ट्रुथ नू सर्व करने वास्ते या फिर हैविंग फ्री विल। ठीक है फ्री विल होना वर्च्यू ऑफ लिबर्टी। एक बार आप फिर बैक आ जाने वर्च्यू ऑफ लिबर्टी सब तो पहला आप लिबर्टी वाले पैराग्राफ के अंदर जावांगे जिहदे अंदर आप लिबर्टी के बारे पढ़िया की हुंदी है वर्च्यू ऑफ लिबर्टी। दिस इज़ द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी ये देखो आप पढ़िया सी कि वर्च्यू ऑफ लिबर्टी की है दिस इज़ द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी एंड द ग्राउंड ऑन विच वी मे बेस्ट जस्टिफाई आर बिलीफ इन इट दैट इट टॉलरेट्स एरर इन ऑर्डर टू सर्व द ट्रुथ कि एरर नू टॉलरेट करती है जी ट्रुथ नू सर्व करने वास्ते। तो वर्च्यू ऑफ लिबर्टी की होया लिबर्टी का गुण की होया जी की होएगा की राइट आंसर आएगा वट इज वर्च्यू ऑफ लिबर्टी मीन्स हैविंग ए गुड पर्सनैलिटी डूइंग डिबेट टॉलरेटिंग एरर्स टू सर्व द ट्रुथ या फिर हैविंग फ्री विल। तो देखो सामने ही अपने आंसर पे आया है वर्च्यू ऑफ लिबर्टी मीन्स की आएगा कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके दसो जी वर्च्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब की आएगा। मैं हुणे तुहानू पढ़ के दसिया कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्च्यू दिस इज़ द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी एंड द ग्राउंड ऑन विच वी मे बेस्ट जस्टिफाई आर बिलीफ इन इट दैट इट टॉलरेट्स एरर इन ऑर्डर टू सर्व द ट्रुथ। ठीक है सो वर्च्यू ऑफ लिबर्टी की चीज़ होगी जी टॉलरेटिंग एरर्स टू सर्व द ट्रुथ। ठीक है वर्च्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब की है टॉलरेटिंग एरर्स टू सर्व द ट्रुथ। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीडम विल बिकम ए रियलिटी। सो पैसेज के अकॉर्डिंग दसो जी फ्रीडम जिहड़ी है वो रियलिटी कदों बनेगी। व्हेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीडम विल बिकम ए रियलिटी व्हेन मैन वॉइस एंड एग्जामाइन देयर ओपीनियन जदों मैन वॉइस करनगे आवाज़ उठाएंगे तो अपने ओपीनियन में एग्जामाइन करेंगे या फिर वैन वी हैव ए गुड गवर्नमेंट जो अपनी अच्छी गवर्नमेंट होएगी अच्छी सरकार होएगी या फिर वैन वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट कि आपां वो कर सकांगे जो चीज़ आपां चाहांगे या फिर नन ऑफ द अबव। सो लाइन पढ़ो फ्रीडम विल बिकम ए रियलिटी। सो फ्रीडम वर्ड आप अंदरों एज ए कीवर्ड चूज करते हैं। तो चलो जी बैक स्लाइड के अंदर चलो द ओनली देखो फ्रीडम वर्ड एरिया द ओनली इज फ्रीडम ए रियलिटी व्हेन मैन मे वॉइस देयर ओपिनियन। ठीक है व्हेन मैन मे वॉइस देयर ओपिनियन। ठीक है कि फ्रीडम रियलिटी कदों बनेगी तो सामने पे है व्हेन मैन वॉइस एंड एग्जामाइन देयर ओपिनियन। सो ए इज द राइट आंसर व्हेन मैन वॉइस एंड एग्जामाइन देयर ओपिनियन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश लाइफ इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन सिविलाइज्ड अनएग्जामाइंड लिबरल या फिर डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 द डैश लाइफ इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन केड़ी लाइफ सिविलाइज्ड होगी अनएग्जामाइंड अनफिट इदा की लाइफ जी है ना बेटा वो अनफिट है जी मैन दे लिव करने वास्ते। देखो सिविलाइज तो हो गया सभ्य जिंदगी अपने वास्ते अनफिट थोड़ी होएगी गलत है। लिबरल लाइफ आज़ाद भरी जिंदगी आज़ादी वाली जिंदगी अपने वास्ते अनफिट होएगी बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेटिक लाइफ अपने वास्ते किस तरीके से अनफिट होएगी बिल्कुल नहीं क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो आप रह रहे हैं
डी भी रोंग है। तो जी द अनएग्जामाइंड जिहड़ी लाइफ नूं एग्जामाइन नहीं किया गया जी वो लाइफ जिहड़ी है इज़ अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। ठीक है, थोड़ा जिहा लॉजिकली भी आपां नूं समटाइम चलना पएगा। ओके, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली अगर मैं कहां कि डायरैक्ट वो जी अपने को आंसर मिलन, कुछ गल्लां तुहानूं लॉजिकली भी नाल लैके जाना पेगा। नैक्सट है द एंड इज टू फाइंड द ट्रुथ, वट काइंड ऑफ नाउन इज ट्रुथ। चलो जी, बहुत ही वधिया क्वेश्चन है। द एंड इज टू फाइंड द ट्रुथ कि एंड की है जी, एक आपां नूं सेंटेंस दिता गया द एंड इज टू फाइंड द ट्रुथ। सो ये अंदर ट्रुथ की चीज़ है। सो जेडे बच्चों ने ग्रामर की क्लास लगाई है स्टूडेंट, मैं ग्रामर की क्लास के अंदर तुहानू मैं टॉपिक करवाया है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक आप किए। जेडे बच्चे मैनू एक क्वेश्चन करते हैं ना कि मैम, जो बच्चे मैनू एक क्वेश्चन करते हैं कि मैम किन्ने नंबर की ग्रामर आएगी, तो बेटा पेपर के अंदर ग्रामर जी है वो इस तरीके के नाल आनी है। हुण तुसीं देख लो, ठीक है। द एंड इज़ टू फाइंड द ट्रुथ, तो ये अंदर ट्रुथ की चीज़ है जी। तो ट्रुथ जो है ये अंदर की है, एक एब्सट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉन्स्ट्रेट नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन तो तुहानूं पता ही, नेम ऑफ ए परसन, प्लेस, थिंग, ठीक है। काउंटेबल काउंट कर सकीए जिहड़ी चीज़ां नूं। ट्रुथ बेटा, ट्रुथ जिहड़ा है वो एब्सट्रैक्ट नाउन है। एब्सट्रैक्ट नाउन की हुंदा है, जिन्हां चीज़ां नूं आपां टच नहीं कर सकते, ठीक है। द थिंग्स, वो वाली चीज़ां जिन्होंने आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ की कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो की हुंदी है जी, वो हुंदी है एब्सट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिन्हां चीज़ों आप छू नहीं सकते, जिन्हां चीज़ों आप देख नहीं सकते, जिन्होंने सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, वो की हुंदे, वो हुंदे एब्सट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलो, अगर हम तक तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर दो चैनल नूं, ठीक है, बैल आइकन नूं प्रेस करके, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन तुहाडे कोल टाइम टू टाइम पहुंच जाए। चलो, आइडेंटिफाई द वर्ड ओपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड सैवेज। सो देखो स्टूडेंट, मैं एक तुहानूं एक होर गल दसां कि आपां एक क्लास जिहड़ी है स्टार्ट की है 12:30 ते, जिहड़ी अपनी सिनोनिम्स की क्लास हुंदी है। सो मैं उस क्लास के अंदर इस वर्ड का मीनिंग अज मतलब प्रीवियस आप क्लास के अंदर इस वर्ड का मीनिंग किया है। तो मैं बच्चों को एक गल कहना चाहनी है कि देखो कितनी ज़्यादा क्लासेस तुहाडे वास्ते यूजफुल हो रही हैं, ठीक है। तो ये अंदर की है, ऑपोजिट का मतलब है उन्हें एंटी पूछ लिया, एंटोनिम्स, ठीक है। ऑपोजिट पूछ लिया तो दसो की आएगा सैवेज वर्ड का मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट पूछया है सैवेज वर्ड का, की आएगा बारबेरिक, टर्बुलेंट, सिविलाइज्ड या फिर फायर्स। हाँ जी, वट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सैवेज। तुसी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके दसो जल्दी जल्दी की आएगा जी, की आएगा जी। बेटा बारबेरिक का मतलब होंगे वहेशी, इस दे बारे भी मैं दस के आई हूँ उन्हें। वहेशी जिन्होंने आप कहते हैं करूर, जिसनों की कह दिता जाता है करूर। कमेंट सैक्शन के अंदर तुसी मैनू कमेंट करके दसना है इसका ऑपोजिट की आएगा। वट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सैवेज। टर्बुलेंट का मतलब होंगे बेटा जी गड़बड़। टर्बुलेंट का मतलब होंगे गड़बड़, ठीक है। सिविलाइज का मतलब होंगे सभ्य, ठीक है। सिविलाइज का मतलब की होंगे सभ्य, ओके। फायर्स का मतलब की होंगे, इसका मतलब होंगे सभ्य। फायर्स का मतलब होंगे जी भयानक। फायर्स का मतलब की होंगे भयानक, ठीक है। फायर्स का मतलब की होंगे भयानक। सो सैवेज का मतलब की होंगे, सैवेज का मतलब होंगे अनसिविलाइज्ड, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, सैवेज का मतलब की होंगे अनसिविलाइज्ड, ओके। सो इसका ऑपोजिट की होएगा सिविलाइज्ड। ऑपोजिट की होएगा जी सिविलाइज्ड। सो सी इज द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड वेंट, VENT। सो इदा का वर्ड तुसी लभना है, मतलब सिनोनिम लभना है नीयरली जिसका मतलब वेंट होवे। तो सब तो पहला जी क्लास के अंदर मैनू तुसी कमेंट सेक्शन के अंदर एक गल दसो, वेंट का मतलब की होंगे VENT। VENT, वेंट का मतलब होंगे जी किसी चीज़ को आप बाहर निकाल दें। वेंट का मतलब होल, ठीक है, छिद्र जिन्हों आप कह दें।
बैरियर, रिप्रेस, कंसील या फिर एक्सप्रेस फीलिंग। वेंट VENT, वेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ VENT, ठीक है। बैरियर तुहानू पता ही है, बैरियर की बैरियर्स लगे होंगे। रीप्रैस, रीप्रैस का मतलब की होंगे प्रैस करना, किसी चीज़ को दबा के रखना। कंसील, कंसील का भी मीनिंग आप पढ़िया है। वेंट का मतलब की होंगे, वेंट का मतलब VENT, वेंट का मतलब होंगे किसी चीज़ को की करना स्टूडेंट, बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकलन देना, ठीक है, किसी चीज़ को बाहर निकलन देना, ठीक है। कंसील का मतलब की होंगे स्टूडेंट, कंसील का मतलब होंगे छुपाना किसी चीज़ को। वट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसील, कंसील मतलब छुपाना किसी चीज़ को, ठीक है। रीप्रैस करना, किसी चीज़ को दबाना, रीप्रैस करना, ठीक है। बैरियर तुहानू पता ही है, बैरियर की होंगे, बैरियर्स लगे होंगे स्टॉप करने वास्ते। वेंट का मतलब होंगे जी, वेंट का मतलब होंगे बाहर निकलन देना, निकालन देना या निकलन देना किसी चीज़ को। सो जो आप फीलिंग्स एक्सप्रैस करते हैं, फीलिंग्स को शो करते हैं, इट मीनस एक्सप्रैस फीलिंग। सो क्लोजेस्ट मीनिंग द वर्ड होएगा वेंट द एक्सप्रैस फीलिंग, मतलब फीलिंग्स को शो करना, बाहर निकलन देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मैन। हाँ जी, मैन वर्ड, मैन वर्ड तो केड़ा एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। MEN मैन, विमेन, मैनली या फिर मीन। एडजेक्टिव का मतलब की होंगे जो विशेषता दसता है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब की होंगे विशेषता दसदा है। मैन, विमेन, ये तो सारे की हो गए किस दे अंदर आते हैं, नाउन के अंदर आते हैं मैन विमेन, ठीक है। ये आप पढ़े है ना स्टूडेंट्स। देखो इन्ना तो लॉजिक तुहानू लगाना ही पएगा, क्लास अगर तुसी प्रिपरेशन कर रहे हो इन्नी तो नॉलेज तुहानू रखनी ही पएगी, ठीक है। यस, सिंगुलर मैन जो होंगे बेटा वो सिंगुलर होंगे, MEN मैन जो होंगे वो प्लूरल होंगे, ठीक है, MEN। सो मैन, मैन दे नाल जिहड़ा एडजेक्टिव बनता है वो है मैनली, मैनली CEMANLY, मैनली जिहड़ा एडजेक्टिव बनेगा वो की बनेगा जी मैनली, MANLY, ठीक है जी, समझ आ गया। सो इसे दे नाल स्टूडेंट्स अपनी अज की क्लास कंप्लीट होंदी है। अज का जिहड़ा पैराग्राफ सी उस पैराग्राफ नूं आपां क्वेश्चनस रीड करके भी सॉल्व कर सकते सी, लेकिन उहदी क्विक रीडिंग अगर आप लै लैंदे आ तो किते ना किते अपने लिए थोड़ा बहुत मददगार हो जाता है ईजीली क्वेश्चनस नूं करन वास्ते। आई होप अज का जिहड़ा लैक्चर है तुहाडे वास्ते यूजफुल रहा होएगा, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर ये आया सी, बिल्कुल ईजी पैराग्राफ सी, अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा मुश्किल नहीं सी। फिर भी अगर तुहानू कोई डाउट होवे या फिर तुहानू लगे कि कोई चीज़ तुहानू समझ नहीं आई, या तुसी कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके अपनी क्वेरीज नू कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसी दे नाल साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनने वास्ते तुसी सानू 9710050500 ते अपना नेम, सिटी, कोर्स ते जेंडर लिख के तुसी सानू मैसेज कर सकते हो। तो तुहाडी कोई भी क्वेरी है सो उसनू आपां की कर सकते हैं, कंप्लीट कर देंगे तुहाडे मैसेज के थ्रू ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।